eternally and dress code. The dress code will be released 3-5 days prior, but keep ready your Indian and Western formals. Fifth, if you have any doubts, you can reply to messages on community and your doubts will be answered in 24 hours. We will be sending a message for the same every day till the conference. The lastly, these sessions are being recorded. Recording will be shared after all the session will be over. Now it's time to commence the session covering documentation and your doubts. For this session, let's call upon our founder, Kashish Bamba. Oh, I am so sorry. I was speaking on mute. Really sorry about that. Okay. So yesterday we are actually having some backlog. Okay. हमें कल स्पीच राइटिंग भी कवर करना था बट हमने नहीं करा तो आज वी विल रश ओके थोड़ा सा सो व्हाट वी विल डू इज कि वट एवर डाउट्स वी हैव ऑल ऑफ देम कोई भी डाउट हो बीच में एक भी डाउट नहीं लेंगे बीच में सारे जितने भी डाउट्स हैं ऑल ऑफ देम विल बी टेकन द एंड ओके नो डाउट्स इन बिटवीन ठीक है सो या दैट इज हाउ वी विल गो अबाउट इट अभी एक पोल का क्वेश्चन है अभी मैंने बनाया है एंड में अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम और पोल ट्राई कर सकते हैं ओके चलो the poll question is on your screens in okay wait the poll question is in your on your screens in 3 2 and 1 ट्रिकी है पहले पढ़ना और फिर ट्राई करना और जिनको पोल नहीं मिल रहा है देयर इज अ पोल सेक्शन ठीक है साइड में जो बॉक्स बनाते हैं उसमें आपको मिल जाएगा पोल्स तो वहां पर है ठीक है आई कैन ओनली सी वेरी फ्यू वोट्स टोटल 30 वोट्स एवरीबडी प्लीज वोट Arav, whatever doubts you have, I will take towards the end today because we are short of time today, okay? Secretariat members keep letting in the people, okay? Arav, yes, you have raised a query. That is why we have resolved your query and given you your allotted country today. We have ourselves sent you allotted country long back, okay? But it's Arav Deol, not Tomar. But I think you did not get the mail, so we have resent it today after you've mailed us the query. Arif Tomar, if you have written the mail on Tuesday to change my email, when will I get? Arif, we have not received your mail on our mail ID. If today you could mail us on the novicessummit@gmail.com, the correct ID, then yes. Otherwise, you can WhatsApp me today, remind me today, because since 2-3 days your issue is not being resolved, so I will personally resolve it today after this session, okay? Right. सबने पोल पे वोट कर दिया चलो अब देखते हैं क्या आंसर है लेट मी चेक where is the poll yeah here we go so the there is no majority only 81 people have voted गलत ही आंसर दे दो बाकी लोग दे दो प्लीज आई नो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट we all can just try right Okay, दो तीन votes पड़े हैं. So the correct answer for this question is public international law. Why? Because when multiple countries are coming together and making a law which is applicable on not just citizens of any one country, okay, then obviously it is not part of private international law because private international law is particularly the law or the of any other country that you're not citizen of. Okay, so that is how we identify it. Right. So are we ready to begin today's session? Can I get some thumbs up, please? Very quickly. Okay, amazing. I'll just screen share them.
Today we will learn how to write the speech. Before I screen share, okay, I would want to, share a few things with you people. But just a second, I'm getting few questions. Just give me 1 minute. We have, see, if you have any questions regarding when will you get the countries and all of that, ठीक है, then we will discuss that at the end. अभी आप मुझे question भेजोगे, I won't be able to answer. Arav, I have already answered your question that we will resolve your concern today. You can call me after this session today, okay? It is not necessary to join any alliance. If you want to join, you can. Otherwise, there is no need. Ma'am, it says that my chat isn't available in the last meeting. Well, everyone must be using it. No. The chat option is not available for anybody. Don't worry. Okay. Ma'am, where is the mandate given? On the UN website. Okay. Here, these are the areas where you can use AI. AI पे लिखो कि can you please give me link for the site which shows mandate of whatever is your committee. तो वो मिल जाएगा आपको. ठीक है? चलो. Otherwise, we don't use AI. We use AI to get access to the resources. That's all. Not for the content that it supplies. Become smarter than AI. Yeah. चलो. अब बात करते हैं speech की. जब हम speech की बात करते हैं, ठीक है, we need to understand one thing, that there is, again, like research, there is no right or wrong way of what is the best speech. ठीक है? One speech can get you 10 out of 10 marks in one committee and 4 out of 10 marks in other. ठीक है? So your speech and the content obviously matters, but another factor that matters here is the kind of competition that is there in the committee. So you should always update yourself with your research and your speeches based on how it is in the committee. Okay. If you are redundant and if you are very rigid with मैं तो घर से यही बना के लाई हूँ, मैं तो यही research follow करूंगी, यही research follow करूंगा, then there is no point. क्योंकि अगर आप इतना research करके आए हैं और कोई इतना research करके आया है, ये इतना बड़ा gap है. अगर आप इसी पे रहेंगे और वो अपने लेवल पे रहेंगे तो आप कभी भी उनसे compete ही नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको उनके लेवल पे या उससे ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो आपको constantly update होते रहना पड़ेगा. Same is with the speeches. ठीक है? और हमेशा कमेटी का रूल है, जब भी आप कमेटी में जाएं और आपको लग रहा है कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ट्राई करो उनकी स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो. सो यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी स्पीच में मैं क्या लैक कर रहा हूँ जो ये डाल रहे हैं, क्या ऐसा चेंज है इनके पॉइंट्स में जो मेरे पॉइंट्स में नहीं है. राइट? ये फैक्टर है. अब जब हम बात करते हैं स्पीचेस की, तो वी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. ठीक है? इंट्रोडक्शन, प्रेमाइस और आर्ग्यूमेंट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. इंट्रोडक्शन, premise or argument. First part. Second part is your analysis. And the third part, Isha, you can type down whatever it is. And if it is about screen, then abhi I have not shared. I will share. Don't worry. Look, kari dete. It gets easier so you can copy. Okay. Here we are. Good speech. Okay. So when we talk of speeches, I hope the screen is being shared with you all. Let me just check. I think it is, yes. When we talk of speeches, it is mainly divided into 3 parts, okay? Introduction, premise, argument, analysis or interpretation, and your conclusion or solution. Now let's understand each one of them. Introduction, premise or argument is the basis on which you will frame the entire speech. मतलब मेरे को अगर स्पीच देनी है ऑन पोल्यूशन, ठीक है, और मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट हाउ poor people suffer more because of pollution as they live in the areas wherein government maintenance is very low. तो ये हो गया मेरा पॉइंट, मेरा कोर आर्ग्यूमेंट, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ स्पीच में. ठीक है? That is my premise, introduction / argument. और इसको आपको अपनी स्पीच में वेटेज और टाइम दोनों 25% के अराउंड देना. ठीक है? Then comes your analysis. The reason why I have colored it red is because it is the most important part of your speech. ठीक है? क्यों? क्योंकि रिसर्च में जो भी है वो तो आप इंटरनेट से लेके आ रहे हो, राइट?
then what is the, I mean, why are you getting marked then? ये तो same internet से copy करके आप ला रहे हैं research. The marking that you get in the committee is about how you analyze the research that you found on the internet. Okay. So for example, अगर मुझे इंटरनेट पे मिलता है या मेरे से कोई पूछता है, आप में से I don't know your young kids, but do you know about military coup? मिलिट्री का जो टेक ओवर होता है, जैसे पाकिस्तान में, अगर मैं बहुत लेमन टर्म्स में समझाऊं तो समझ आया? अब अगर मुझसे कोई पूछे कि क्यों म्यांमार में मिलिट्री को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जानते हो कुछ समय, ओके नहीं समझ आया मिलिट्री को, मैं समझा देती हूँ. क्या होता है कि मिलिट्री अगर टेक ओवर कर लेती है और कंट्री को रन करती है, जैसे हमारे यहाँ पे कौन करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं ना, बट अगर आर्मी और द मिलिट्री ट्राइज टू डू दैट, ठीक है, वो टेक ओवर कर लेते हैं, नॉट इन अ वेरी ऑथराइज्ड और इन अ वेरी प्रोफेशनल फैशन, ठीक है, तो वो होता है आपका मिलिट्री coup. ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है COUP, ठीक है, बोलते कुबर. ओके. अब पाकिस्तान में ऐसा है, मिलिट्री की बहुत डोमिनेंस है उनके वहां के सिस्टम में, ठीक है. अब भले ही उनका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, बट irrespective of that, there were times when military tries to take over, they take over and then the entire thing is disrupted. ठीक है. So अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या म्यांमार में मिलिट्री coup होगा तो चलेगा, ठीक है, why there should be no military coup in Myanmar, ठीक है, म्यांमार एक दूसरी कंट्री है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा इंट्रोडक्शन या प्रेमाइस मेरा यह है कि नो, there shouldn't be any military coup in Myanmar because whenever there is a military coup like situation, it disrupts the everyday functioning of a nation politically, economically, and there is a lot of unrest. ठीक है, ये मेरा हो गया आर्ग्यूमेंट. अब मैं एनालिसिस कैसे दूंगी कि as seen in the case of Pakistan, because of military coup, there is so much economic instability that Pakistan is now a burden on the global economy. And the world cannot afford two nations which are burden on the global economy. That is why there must be no military coup in Myanmar. Rather, United Nations must intervene. अब मैं आ गई solution पे. मैंने analyze कर दिया compare करके कि पाकिस्तान में ऐसा था, ठीक है, और वहां पे प्रॉब्लम्स बहुत होने लग गई, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई, इसलिए म्यांमार में ऐसा नहीं होना चाहिए. ये मेरी कंक्लूजन है कि दैट इज व्हाई देयर मस्ट नॉट बी एनी मिलिट्री coup in Myanmar. Rather, United Nations must intervene in this matter and act upon it soon and make sure that there are ground level experts who analyze the situation and advise the government as well as the military to act in a fashion that is beneficial for the citizens. ठीक है, समझ आया कि हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि नहीं होना चाहिए मिलिट्री को, उससे कंट्री के हाल खराब हो जाते हैं. एनालिसिस दी कंपेयर करके कि देखो पहले पाकिस्तान में हुआ था, वहां पे आप इकोनॉमी को देख ही सकते हैं. ठीक है, GSM आप अपना प्लीज क्वेश्चन अगर है तो टाइप करना, एंड में ही एड्रेस हो पाएगा. आई एम सो सॉरी. ठीक है, ओके. एंड लास्ट में मैंने कंक्लूजन या सॉल्यूशन दिया कि UN मस्ट इंटरवीन. ठीक है, सेकंड पॉइंट पे मैं इलेबोरेट कर देती हूँ एनालिसिस पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कल का और आज का रिकॉर्डेड सेशन दोनों मिलेगा आपको, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बट ये सेशन अटेंड करो क्योंकि दिस विल टेल यू हाउ टू मेक स्पीचेस. ठीक है, तो ये सेशन है जो आपको आई थिंक आज एंड तक अटेंड करना चाहिए. ओके, एनालिसिस क्या होता है, हमें क्या समझ आया फ्रॉम द सिचुएशन, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी. ठीक है, जैसे कि हम मिलिट्री coup की बात कर रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ था और वहां पे इकोनॉमी के बहुत बुरे हाल हो गए, तो इसीलिए सेम चीज म्यांमार में नहीं होनी चाहिए. चलो मैं इसको एक फनी एग्जांपल से बताती हूँ. ठीक है, क्वेश्चन है मेरा कि somebody has asked me कि कशिश प्लीज टेल मी, who do you think should be king of fruits. ठीक है, अब हम सब जानते हैं मैंगो है किंग ऑफ फ्रूट्स. अब मैं इसको ये इंट्रोडक्शन, एनालिसिस और कंक्लूजन के फॉर्मेट में आपको समझाती हूँ. ये थोड़ा सा फन भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो मुझसे किसी ने पूछा हु शुड बी किंग ऑफ फ्रूट्स, मैं आपको दो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगी. एक जिसमें मैं बताऊंगी मैंगो को होना चाहिए, दूसरा जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैंगो को नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, दैट इज इन फेवर ऑफ मैंगो. So I'll go like, greetings ladies and gentlemen. Today I believe that mango must be king of fruits
कंसिडरिंग किंग इज समबडी हु हेल्प्स अप, ठीक है, king is somebody who helps people move beyond their existing condition and grow for betterment, and same is the case with mango, ठीक है। ये मैंने अपना प्रमाइस सेट करा, अब आते हैं एनालिसिस पे। Since the time farmers have shifted from other crops and other fruits and vegetables to mango, all the farmers who are growing mango are earning much more than those who are not growing mangoes. And that has helped so many farmers to come out of poverty and has improved their living conditions. ठीक है, अब ये मैंने एनालिसिस दिया कि जैसे जैसे फार्मर्स ने मैंगो ग्रो करना शुरू करा, उनकी इनकम बढ़ गई, उनकी लिविंग कंडीशन बेटर हो गई, वो पॉवर्टी से बाहर आ गए। ठीक है, इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया या यूएन का कोई कन्वेंशन हो गया, उसको एज अ प्रूफ भी यूज कर सकते हैं हम अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ कि अ स्टडी कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2019 suggested that 92% farmers who grow mango are above the poverty line level and they are having a decent level of living। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इंट्रोडक्शन दिया कि किंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एनालिसिस दी कि मैंगो को क्यों किंग होना चाहिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। दैट इज द रीजन व्हाई आई बिलीव मैंगो मस्ट बी किंग ऑफ फ्रूट्स, बिकॉज it helps people grow from their current situation. Additionally, mango has all the characteristics of being unique and extraordinary, and that is how a king must be. ठीक है, but to make sure that there is equal system and equality between fruits, we can do re-election every 3 years, and after every 3 years we can decide who will be the new king of fruits. ठीक है, समझ आया आपको? थम्स अप दे दो कि कैसे करना है स्पीच को स्ट्रक्चर। इस एग्जाम्पल से तो आ ही जाना चाहिए आई थिंक। ओके, ठीक है, अब उल्टा करते हैं। ओके, प्रशांति अगर आपका कुछ है आप प्लीज टाइप कर दो। ओके, चलो अब इसका उल्टा करते हैं कि मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोबारा समझना, ध्यान से सुनना, बाद में क्वेश्चन पे ध्यान देना। ओके, चलो। किंग इज समबडी who makes sure that everybody is treated equally, and king is somebody who's equally available for people irrespective of their socio-economic status. But unfortunately that is not the case with mango. Mango is so expensive that not everybody can afford it, and a fruit that creates disparity between rich and poor people, that only rich can access it and poor can't, cannot be king, because king shall treat everybody equally. That is why we suggest that banana should be king of fruits, because it is fibrous, it gives energy, and also it is equally accessible for both the rich and the poor. समझे इंट्रोडक्शन कि किंग कौन होता है? ठीक है, किंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों मैंगो को किंग नहीं होना चाहिए, फिर एनालिसिस दी कि कैसे मैंगो इतना एक्सपेंसिव है कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्रिएट करता है, और हमने कंक्लूजन में और सॉल्यूशन दिया साथ में कि बनाना को बना दो भाई, बनाना तो चीप भी है, सबको मिल जाता है और अच्छा फ्रूट है। तो शांति, ये जो मैंने बताया ना कि कैसे मैंगो एक्सपेंसिव है, सबको मिल नहीं पाता है, या फिर मैंगो ने फार्मर्स की हेल्प करी है टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी, एनालिसिस है कि आपने मुझे एक स्टेटमेंट दिया, मैं उससे क्या क्या और कंक्लूजन या और क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। ठीक है, वो हो गई आपकी एनालिसिस, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही है, ठीक है, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी गई कि नोविसेस विल कंडक्ट फ्री ट्रेनिंग, या अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि novices will allow kids from economically weaker sections to attend this conference on only 300 rupees। ठीक है, ये हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम EWS कैटेगरी के बच्चों को सिर्फ 300 रुपीज में अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे आपकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है, ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि लोगों में इक्वालिटी आए, ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए कंसर्न है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है और उससे जो हम उसका मीनिंग डिराइव कर पा रहे हैं, हम जो उससे अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ कर पा रहे हैं, वो हो गई एनालिसिस। ऑन कॉन्ट्रेरी, ठीक है, लेट्स से मैं आज का ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर देती कि गाइस सॉरी आई एम नॉट एबल टू टेक योर सेशन टुडे, ठीक है, बिकॉज मेरी फ्लाइट है
एंड अभी तक मेरी पैकिंग नहीं हुई है, आई एम ट्रैवलिंग बैक टू दिल्ली, दैट इज माई होम बिकॉज दिवाली इज देयर, राइट? तो अगर मैं ये सेशन कैंसिल कर देती कि नहीं नहीं आज मैं सेशन नहीं लूंगी, कल मेरी फ्लाइट है, तो आप क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करते इससे? कि मैम इज अनप्रोफेशनल, शी डज नॉट नो हाउ टू वैल्यू हर कमिटमेंट्स, ठीक है, शी डज नॉट रियली केयर अबाउट द डेलीगेट्स, वी पीपल वर वेटिंग फॉर हर, राइट? तो ये हो गई आपकी उस सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। याशिका हम ओपनिंग स्पीच नहीं जीएसएल बोलेंगे। जीएसएल 90 सेकंड्स का बाय डिफॉल्ट होता है, आप सब ट्राई करो कि 80 सेकंड्स तक का बनाओ, 75-80 सेकंड्स का बनाओ, और आप अपना रिमेनिंग टाइम दो फॉर क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज पीओआई। मैम व्हाट अबाउट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स? यस, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक चलो अभी वो मैं आगे बताऊंगी। ये सबको क्लियर हुआ कि स्पीच कैसे बनाते हैं, एनालिसिस क्या होता है? किसी को कोई डाउट है? ओके गुड, इतने इजी इजी एग्जाम्पल दे दिए मैंने, हाँ अपनी बुराई भी कर लिया आप लोगों को समझाने के लिए, अब तो आ ही जाना चाहिए। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं हम। जब हम बात करते हैं स्पीचेस की, तो 3 ब्रॉड कैटेगरी में एक स्पीच को हम डिवाइड कर सकते हैं कि स्पीच को किन किन पैरामीटर्स पे असेस किया जा सकता है। पहला है मैटर। मैटर क्या हो गया? आपका कंटेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट, ठीक है। मैटर आपका कंटेंट है। बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छे ऑडिटर्स नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हैं, बट अगर दे टॉक सेंस एंड दे हैव गुड कंटेंट, then MUNs is I think one of the very few speaking competitions that does not really value your speaking style. It values what you speak than how you speak. तो मैटर आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉप नॉच होना चाहिए। फिर आता है मैनर, आप कैसे बोल रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन है। अब मैं अगर ऐसे आपसे बात करूँ कि कर देते हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा आपको, मैं ऑडिबल ही नहीं हूँ, क्लैरिटी नहीं है, या मैं बहुत फास्ट 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 बोले जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा, तो वो भी ठीक है, पॉइंट नहीं है। तो हमारी स्पीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, वी शुड बी लाउड, ठीक है, दैट एवरीबडी कैन हियर इट, मॉड्यूलेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड तीसरी चीज जो है वो है मेथड। मेथड है कि मुझे आपको स्पीच प्रेजेंट करनी है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन, ठीक है। यही मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती, एक पॉइंट पे प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, फिर सॉल्यूशन, फिर कंक्लूजन, फिर प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, फिर दोबारा प्रॉब्लम, फिर कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन, कोई स्ट्रक्चर ये वायर है। ये बड़ा ही मेटाफोरिकल है बात, बट आपकी स्पीच एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए कि अगर वो एक पॉइंट पे स्टार्ट करी, जैसे हमने स्टार्ट किया कि किंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फिर हमने उसको मैंगो से रिलेट करा और बताया कैसे मैंगो वो डॉट्स फुलफिल करता है, वो चेक बॉक्सेस फुलफिल करता है, और आगे फ्यूचर के लिए सॉल्यूशन भी दिया, ठीक है। तो हमारा पूरा ये कनेक्टेड था। बट अगर मैं बोलती कि मैंगो शुड बी किंग ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल ऑफ दैट, और बीच में बोलती कि बनाना इज आल्सो नाइस फ्रूट, बट देन वी कैन आल्सो कंसीडर दिस कमिंग बैक टू मैंगो, दिस इज दिस, देयर वुड बी नो स्ट्रक्चर, राइट? सो इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। इसके लिए मैं आपको इसको ये बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आई विल शो यू अ स्पीच ऑल्सो, स्क्रीन शेयर, ठीक है। हाँ, I will screen share a speech and then we can, understand it better. Give me 1 second, okay? Mahima, it is up to you. आप 90 का भी बनाना चाहो, nobody can stop you. But my personal recommendation or tip is कि GSL में at least give 10 seconds of yields. ठीक है? So we should be having a groundbreaking or suspectful start. No, Arav, not necessarily. Instead, it should, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग है ऐसा कुछ लाओ, बट या ऑब्वियसली अगर आपके पॉइंट्स यूनिक हैं तो उनकी वैल्यू हाई होगी, बट अगर आप सिर्फ यूनिक पॉइंट्स बोल रहे हो, कोई एनालिसिस नहीं दे रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इट मस्ट बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। प्लीज अब क्वेश्चंस एंड में पूछना, ऐसे सेशन बहुत डिले हो जाता है, आई एम सॉरी, बट आरव एंड एवरीबडी आर टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड, ओके राइट। अब आते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीचेस, कि अभी मैं क्वेश्चंस खोल ही नहीं रही हूँ, मैं सीधा एंड में खोलूंगी, रिबटल्स के बारे में मैं बता दूंगी, ठीक है। पहले आते हैं अब हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे। ऑलवेज देयर इज अ वैल्यू ऑफ यूनिक पॉइंट्स। अगर आप कमेटी में जो बोला जा रहा है वो रिपीट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक पॉइंट बोला, फिर आपने भी वही बोल दिया, फिर किसी और ने भी बोल दिया, तो उस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर आप मार्क्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि ईबीज ना एक पॉइंट के बाद स्पीचेस सुनते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यही रिपीट पॉइंट है,
अगर आप रिपीट पॉइंट करोगे तो वो दे विल नॉट, व्हाई वुड दे लिसन, क्योंकि वो सुबह से वो 50 बार सेम पॉइंट सुन चुके हैं. So there must be obviously some uniqueness or novelty factor, that comes into play. Moving on to avoid repeating, as I already mentioned, कि repeat मत करोगे. Third thing is your speeches should be modified as per your speech position. इसका मतलब क्या है? अगर आपकी स्टार्टिंग में स्पीच आ रही है, ठीक है, और आप बात कर रहे हैं, आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मेक्स सेंस. बट अगर आपकी कमेटी में लास्ट स्पीच है और तब भी आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब आपसे पहले 10 लोग और कर चुके हैं या 50 लोग और कर चुके हैं, तो इट वुड नॉट मेक सेंस. तो कमेटी में जो डिबेट चल रहा है उसके हिसाब से अपनी स्पीचेस का अगर थोड़ा पार्ट पहले से बना रहे हो तो थोड़ा पार्ट फ्लेक्सिबल भी रखो, या बी फ्लेक्सिबल है ना कि आप स्पीचेस चेंज कर पाओ. ठीक है, इसका बेस्ट तरीका पता है क्या है? इंटरैक्टिंग विद अदर कंट्रीज इन योर स्पीचेस. ठीक है, क्या कि अगर लेट्स से आपने बनाई थी एक स्पीच, उसमें क्या हुआ, लास्ट के 20 सेकंड्स आपको हटाने पड़े क्योंकि किसी और ने आपसे पहले वो रिपीट कर दिया है पॉइंट. तो अब आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंट्रीज की स्पीचेस को ध्यान से सुनो, ठीक है, और उनकी जो भी वो पॉइंट्स बोल रहे हैं, ईदर यू कैन सपोर्ट देयर पॉइंट्स और यू कैन डू अ रीबटल. रीबटल मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना, उनको उनके अगेंस्ट बोलना. जैसे कि मैंने जब बोला, लेट्स से मैं इंडिया हूं और मैंने बोला मैंगो मस्ट बी किंग ऑफ फ्रूट्स एंड अपना पूरा रीजन दिया, और फिर बाद में आती है चाइना की स्पीच. चाइना बोलते हैं नो, द आर्ग्यूमेंट ऑफ डेलीगेट ऑफ इंडिया इज एक्सट्रीमली फ्लॉड बिकॉज मैंगो क्रिएट्स अ डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, सो वी रादर रेकमेंड दैट बनाना शुड बी किंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, तो क्या किया, चाइना ने इंडिया की स्पीच के पॉइंट को काउंटर कर दिया. ठीक है, बता दिया कैसे ये पॉइंट सही नहीं है. ठीक है, समझ आया यहां तक? और आप एड ऑन भी कर सकते हो. अगर वहीं रशिया अग्री करता है कि मैंगो शुड बी किंग ऑफ फ्रूट्स, तो रशिया बोलेगा यस, मैंगो हैज हेल्प्ड सो मेनी पीपल, सच अ हेल्पफुल पर्सन इज ट्रूली अ रूलर, सो दैट इज व्हाई मैंगो शुड बी किंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, तो रीबटल होता है किसी ने जो बोला अपनी स्पीच में, आप अपनी स्पीच में उसे काउंटर कर रहे हैं, और सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, यानी कि उन्होंने जो बोला उस पर एड ऑन कर रहे हैं. इसलिए आपको, आप सबके साथ जो एक प्रॉब्लम में एनालाइज कर पाए ना, यू पीपल आर नॉट वेरी पेशेंट. ठीक है, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू शुड लिसन टू पीपल. क्योंकि एआई हम लोगों को इसीलिए टेक ओवर कर पा रहा है क्योंकि हम पेशेंस नहीं है हम लोगों में. ठीक है, ह्यूमंस अपनी कोर टेंडेंसीज, ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन इज यू हैव इमोशंस, you have patience, you have the ability to listen to somebody till the core, जब तक आप उन्हें अंडरस्टैंड ना करो. अगर हम वही चीजें गिव अप कर देंगे, we have the ability to be empathetic, understand other people's situation. बट अभी क्या हो रहा है, हम लोग सामने वालों की कोई सिचुएशन नहीं समझते. अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि अरे हम बीमार हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, कुछ है, तो आप बोलेंगे अरे अरे बहाने बना रहा है, ऑल ऑफ दैट. हम लोग बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है. हम सुनते हैं ताकि हम फटाफट रिप्लाई कर दें, हम इसलिए हम सुनते हैं कि हम समझें. So do not lose the, and again, humanity is also deteriorating. Kindness is also deteriorating. So do not lose characteristic that makes you human, right? So इसीलिए अभी यहाँ से start करो, सेमिनार में आ रहे हो ना, तो start करो कि be patient, listen to other people, understand their points. ठीक है, अपना अपना तो सब बोलते हैं, be unique. चलो आगे बढ़ते हैं. Analysis for win. Already told you. एनालिसिस इज द मेन कैरेक्टर. ठीक है, तो एनालिसिस तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए. ठीक है, एनालिसिस के लिए एक चीज है कि अगर कोई आप इंटरनेशनल इशू एनालाइज कर रहे हैं एंड आपको नहीं समझ आ रहा है, आप बिगिनर्स हैं, समझ आता है मुझे, आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन इन योर प्लेसेस, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम रिसर्च पेपर्स होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिनके पास पीएचडी है इंटरनेशनल लॉ में, जियो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने पेपर्स लिखे होते हैं इससे रिलेटेड. उस पेपर में एक सेक्शन होता है डिस्कशन का. ठीक है, डिस्कशन में दे गिव यू एनालिसिस ऑफ देयर द सिचुएशन. आप वो उठा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि ओ, मैं इस चीज को इस व्यू पॉइंट से भी देख सकती हूँ. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज. आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा. तो आप ये रिसर्च पेपर्स चाहें तो रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर एनालिसिस. स्ट्रक्चर, ऑलरेडी टोल्ड यू, स्ट्रक्चर मस्ट बी रॉक सॉलिड, प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करना है, और प्रायोरिटाइज योर बेस्ट पॉइंट. बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि ना दे हैव वेरी वेरी, मैं खुद ही स्क्रिबल कर रही हूँ गलती से, सॉरी.
So they have very good points, but they are not able to speak. Why? Because you know वो लोगों ने वो पॉइंट्स एंड में डाले होते हैं, और जब आप बोलने जाते हो ना तो बहुत बार ऐसा होता है कमेटी में डिस्ट्रैक्शन की वजह से। मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, अगर एकदम से क्वेश्चन पॉपअप होता है, कोई मतलब आना चाहते हैं मीटिंग में, तो एकदम से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है आप जितने पॉइंट सोच के आए हो उतना ना बोल पाओ, राइट? तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपके जो बेस्ट पॉइंट है आप वो पहले बोलो, ताकि अगर एंड में इशू भी आया, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन आपके जो पॉइंट्स छूटेंगे दे आर द वंस जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने बेस्ट पॉइंट्स तो पहले ही बोल दोगे ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में कहते हैं ना, हम ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले कर दो कि अगर छूटे भी तो कम मार्क्स वाले छूटे। सेम है यहाँ। लास्ट पॉइंट है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स का, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप 10 पॉइंट बोलोगे ईबी को, ठीक है, फटाफट 2-2 लाइन में एक एक पॉइंट, डजंट मैटर। वहीं उसकी जगह इफ यू स्पीक ओनली 4 गुड पॉइंट्स, 3 गुड पॉइंट्स और इवन 2 गुड पॉइंट्स, ठीक है, या एक ही पॉइंट को बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर रहे हो, बट उसमें इंट्रो भी है, एनालिसिस भी है, कंक्लूजन भी है, तो यू आर समवेयर परफॉर्मिंग बेटर देन दोस्त जो सिर्फ 10 पॉइंट्स रीड करके जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज, जब मैं आपको स्पीच का स्ट्रक्चर सॉरी जब मैं आपको स्पीच का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, यहाँ पर मैं ये भी डाल देती हूँ कि एनालिसिस के बाद आप उसको बैक करने के लिए चाहे नॉट एज अ थर्ड पॉइंट, बट चाहे तो यू कैन यूज इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? कन्वेंशन, डेक्लरेशन, ट्रीटी, एनी मल्टीलैटरल डॉक्यूमेंट, केसेस, ठीक है, केसेस किसके? आईसीजे, ठीक है, या फिर रीजनल कोर्ट्स के। जैसे रीजन है ना, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, तो इनके रीजनल कोर्ट्स हैं, इनके रीजनल कोर्ट्स हैं। जब केसेस कंट्री लेवल पे सॉल्व नहीं होते तो ये वहां चले जाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। तो उनके कुछ केसेस हैं जो आपकी एनालिसिस है वो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि उधर एक प्रूफ है, तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक स्पीच दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इट इज अ स्पीच बाय डॉक्टर शशि थरूर that tells you about how you can structure your speech really well. Okay, give me a second. हाँ, आप अपनी स्पीच रीड करके बोल सकते हैं, देर इज नो नीड फॉर यू टू लर्न इट। ठीक है, यस, आप अगर अपनी सारी स्पीचेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखेंगे दैट इज गुड, एंड आप अपनी स्पीच मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सब लोगों ने सब पॉइंट्स बोल दिए, रादर आप सबके कमेटी में जो पॉइंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, किसी ने पूछा है कि आई हैव सीन डेलीगेट्स ऐसे टैपिंग द टेबल। वो होता है या तो अप्रिसिएशन के लिए या डिसएग्रीमेंट के लिए। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप 3 बार ऐसे अपना, जैसे ये टेबल है ना, तो अपना हैंड्स टेबल रख के ऐसे ऐसे टैप कर देते हैं टेबल पे। बट अगर आप डिसएग्री करते हैं तो लोग बैंक करते हैं। बट इट इज बेटर कि आप स्पीच खत्म होने के बाद करो, क्योंकि फिर ईबी को वो स्पीच ही नहीं सुनाई देती है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन दक्ष में एंड में देखूंगे, एवरीबडी में एंड में देखूंगी। अब क्वेश्चन में बीच बीच में जो मुझे लगता है कि ऐसे हैं जिससे आपका करंट टॉपिक बेटर क्लियर हो, सिर्फ वो ही एड्रेस करूँ, बाकी मेनली आई एड्रेस एट द एंड। चलो अब देखते हैं स्पीच बाय माय फेवरेट पॉलिटिशियन, हु इज नॉट, ठीक है, somebody who really look up to as a politician because of I would say my favorite diplomat instead of politician, that is Dr. Shashi Tharoor. So he has given this one speech, very iconic, Britain does our reparation. Okay, I'll just check if it is, yeah, yes, okay. I'll just screen share that and we will listen to some part of it, okay, very small part of it. Okay.
President, and gentlemen, ladies of the House, standing here with 8 minutes in my hands and at this venerable and rather magnificent institution, I was going to assure you that I belong to the Henry VIII School of Public Speaking, that as Henry VIII said to his wives, I shall not keep you long. But now finding myself the seventh speaker out of 8 in what must already seem a rather long evening to you, I rather feel like Henry VIII's last wife. I more or less know what's expected of me, but I'm not sure how to do it any differently. Perhaps what I should do is really try and pay attention to the arguments that were advanced by the opposition today. We had, for example, Sir Richard Ottaway suggesting, challenging the very idea that it could be argued that the economic situation of the colonies was actually worsened by the experience of British colonialism. Well, I stand to offer you the Indian example, Sir Richard. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. The handloom weavers, for example, famed across the world, whose products were exported around the world, Britain came right in. There were actually these weavers making fine muslin, light as woven air, it was said. And Britain came right in, smashed their thumbs, broke their looms, imposed tariffs and duties on their cloth and products, and started, of course, taking the raw materials from India and shipping back manufactured cloth, flooding the world's markets with what became the products of the dark and satanic mills of Victorian England. That meant that the weavers in India became beggars, and India went from being a world-famous exporter of finished cloth into an importer, went from having 27% of world trade to less than 2%. Meanwhile, colonialists like Robert Clive bought their rotten boroughs in England on the proceeds of their loot in India, while taking the Hindi word loot into their dictionaries as well as their habits. Right. I think we could see how he initially gave a he started with some jokes and all of that, some rhetorical part, which I do not recommend you people. The reason being, there is no need for, what do we say? Rhetorics like quotations or moral statements. Ki equality must be everybody's right. There's no need for these, moral statements and all of that. Rather, I suggest that, and also a pura honorable chair, thank you for giving me an opportunity. No need. Simply show your regard by just saying greetings, ठीक है, and then start. ठीक है, इतना कोई जरूरत नहीं. Honorable chair and fellow delegates and esteemed delegates, you anyway would hate them after 2 days of the committee heads. ठीक है, so there is no need to show this fake regard. Rather give more points and get more marks. Okay. So yeah. अब हम एक चीज और देखते हैं बहुत बार में क्या होता है कि हमारा कोई आर्ग्यूमेंट है, हमारा कोई पॉइंट है, एंड हमें पता है कि हमारी कंट्री किसी पर्टिकुलर मैटर में गलत है. फॉर एग्जांपल, आपको पता है आपकी कंट्री में वायलेंस हुआ है, बट आप इंटरनेशनली जाकर अपनी कंट्री को डिफेम तो नहीं कर सकते हो, राइट? तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पहला अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है ना जो शायद इंप्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, बस है, तो वो बोल के डिफेंड करते हैं कि वी हैव अ लॉ दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. ये बहुत कॉमन टैक्टिक है. दूसरा ये है कि आप उसे एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन पिक करो और उसको एक फ्लॉड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो. जैसे कि मैं आपको भी एक और वीडियो दिखाती हूँ जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प से ये पूछा जाता है कि बेसिकली ही हैज मेड वेरी रेसिस्ट एज वेल कमेंट्स एज वेल एज ऐसे कमेंट जो पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट है. ठीक है, बट ही डिफेंड्स इट एंड ही डिफेंड्स इट विद अ लॉट ऑफ लॉजिक एंड सेंस टू इट. ठीक है, तो टेक्निकली he speaks so smartly about this issue that he is defending his religious discrimination. तो वो speech आप देखिए, ठीक है, and you will understand what I am trying to say. Also, पहले ही disclaimer, do not get offended. We are showing these videos for the academic purpose of it. ठीक है, so please do not take it on yourself or anything. It is a disclaimer, yeah. Okay, I'll just screen share then.
Jimmy, the problem. But isn't it There are people un-American flying- and wrong to discriminate against people based on their religion? But Jimmy, the problem. I'm for it. But look, we have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. You look at look at Paris. Look at what happened in Paris. I mean, these people, they did not come from Sweden. Okay. Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California with 14 people dead, other people going to die. They're so badly injured. I mean, we have a real problem. There's a tremendous hatred out there. And what I want to do is find out you can't solve a problem until you find out what's the root cause. And I want to find out what is the problem, what's going on. And it's temporary. I've had so many people call me and say thank you. Now, if you remember when I did that a week ago, it was like bedlam. All of a sudden, and you watch last night and you see people talking, they're saying, well, Trump has a point. We have to get down to the problem. The people that are friends of mine that called, they said, Donald, you've done us a tremendous service because we do have a problem and we have to find out. Those may have been crank calls. So if you see here how he has very smartly, defended. Although the reason why I laughed in between was the reply that they may have been prank calls. But before that, if you look at it, he has smartly, defended wrongdoings or things that he says otherwise. Okay, so that is there. चलो, तो I think आपको structurization, speech writing वगैरह समझ आया होगा. ठीक है, अब अच्छे से अपनी स्पीचेस पे काम करना शुरू करो. फाइंड आउट न्यू थिंग्स, यूनिक थिंग्स, ऑल ऑफ दैट. चैट जीपीटी या एआई आप कोई भी यूज करोगे तो आपकी रेपिटेटिव स्पीच होगी. ठीक है, क्योंकि सब बहुत बच्चे यूज करते हैं. ठीक है, MUN में ऑलमोस्ट 1000 डेलीगेट्स आर कमिंग. मीटिंग में सिर्फ 100 बच्चे हैं. तो क्या बाकी लोगों को तो नहीं पता ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उन्हें नहीं पता कि एआई नहीं यूज करना. ठीक है. ऑल्सो किसी ने मुझे बोला कि क्या हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना है कि आई एम द डेलीगेट ऑफ दिस. नो, ये भी आपको खुद बुलाएंगे कि डेलीगेट ऑफ चाइना या यू हैव योर स्पीच, डेलीगेट ऑफ इंडिया यू हैव योर स्पीच. उन्हें तो पता ही है ना आप कौन हो, तो क्यों अपनी स्पीच के 10 सेकंड इस सब में वेस्ट करना. ठीक है. Yes, he twisted the conversation of religious and racial discrimination to national integrity. ठीक है. So that is what we do. ये बहुत ही persuasive technique है कि आप एक कम important issue को replace कर दो या relate कर दो with one issue that is highly important. ठीक है. तो लोगों के लिए people do not really care about somebody's religion and discriminating that way. But he related it to national integrity. तो इसीलिए अब जो उनका illogical argument है उसकी वेटेज आ गई, क्योंकि नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. चलो, यू आर अनअवेयर ऑफ द. अगर आपको आंसर नहीं पता, कोई कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रहा है, रिप्लाई वाया चैट इज द बेस्ट ऑप्शन. यशिका, आपका जो मॉडरेटेड अनमॉडरेटेड कॉकस का डिफरेंस है मैं एंड में बताऊंगी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अभी सिर्फ सेशन से रिलेटेड चीजें. ऑल्सो फर्स्ट can we add a stat in the first line? If you want to, you can, but बहुत ज़्यादा stats भी डालोगे ना, so it will have a lot of research but no analysis. So if in the starting there is some stat that actually builds on your argument, then yeah, you can. Again, there is no right and wrong way. You can do it your way. Okay. अगर आपका डबल डेलीगेशन में पार्टनर नहीं आ रहा है दोनों दिन में, yeah, it is fine. Okay. Also after Yeah, you can reply to anything. If you reply via chat, yes, you get marks. Okay, अभी मैं फिर से नहीं ले रही हूँ questions. Please guys, पहले मेन एजेंडा तो खत्म होने दिया करो. Please, I will take your questions. Please, मैंने कल भी लास्ट तक जब तक क्वेश्चन दिए ना, मेरे पीजी का डिनर टाइम ओवर हो गया, इसलिए कोई डिनर नहीं करेंगे, बट पहले सारे आंसर करेंगे हम. ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी, मैं एंड में करा दूंगी, अभी बहुत लेट हो जाएगा. प्लीज बियर विद मी. ठीक है. चलो, अभी जाते हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे, जो कि हमें आज टेक्निकली करना चाहिए था. ठीक है, जो हमने स्पीच के चक्कर में इतना लेट कर दिया, तो ये हम बहुत ही क्विकली कवर करेंगे. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन की,
तो देखो यूएन में there are, I mean, a lot of documents, more than 27 kinds which are prominent, and then there are actual में तो और भी बहुत ज्यादा है. Okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, we will only look at the ones which are very prominent in the MUNs. Okay, पहले तो समझते हैं डॉक्यूमेंट क्या है. डॉक्यूमेंट इज सिंपली अ written what do we say, a written document जिसमें आपने जो भी डिस्कस करा है you are putting it through. ठीक है, ताकि वो एक उसका एक प्रूफ रहे. ठीक है, that becomes part of the international law. So that is how we do it. Okay, अब डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. इस सारे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर वन डॉक्यूमेंट दैट इज ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो एंड में मैं बताऊंगी, उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस बहुत ही सिमिलर बनते हैं. उनका कोई हार्डकोर फॉर्मेट नहीं होता है. ठीक है, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट का हार्डकोर फॉर्मेट होता है, मेनली ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का ही होता है. तो हम ये सब एक एक करके समझते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं पोजीशन पेपर से. ठीक है, इट इज ओनली प्री कमिटी डॉक्यूमेंट दैट वी हैव. प्री कमिटी मतलब MUNs में ओनली प्री कमिटी डॉक्यूमेंट दैट वी यूजुअली यूज. प्री कमिटी का मतलब है कमिटी से पहले सबमिट होता है. आपके MUN पे आने से पहले सबमिट होता है अगर आपके चेयर्स मांगते हैं, बट यहाँ पे किसी भी चेयर ने नहीं मांगा है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है. पोजीशन पेपर में आप अपनी कंट्री का आने से पहले ही बता देते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द स्टैंड दैट यू आर टेकिंग ऑन दिस एजेंडा. ओके, ठीक है. ऋषित प्लीज टाइप डाउन अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, वरना एंड में डाउट्स आई एड्रेस. ठीक है, तो पोजीशन पेपर्स आर बेसिकली द डॉक्यूमेंट्स इन विच बिफोर कमिंग टू द MUN यू सेंड टू द चेयर, और MUN पे आते ही सुबह सुबह कमेटी शुरू होने से पहले आप चेयर को देते हैं, जिसमें आप अपनी कंट्री का स्टैंड एंड क्या आपने करा है, क्या आपके सॉल्यूशंस है, वो सब देते हैं. ठीक है, मैं सब डॉक्यूमेंट एक एक लाइन में समझा रही हूँ क्योंकि इन सबको डेप्थ में करने की इतनी अभी जरूरत नहीं है. आपको बस पता होना चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट में क्या करना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रेस रिलीज या प्रेस स्टेटमेंट. प्रेस रिलीज, प्रेस स्टेटमेंट बाय द कोर एक ही चीज है कि जो प्रेस होती है उसको आपने क्या स्टेटमेंट दिया अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन योर कमिटी. ठीक है, जर्नलिस्ट जो होते हैं एक्चुअल में उनको आप ये देते हैं. ठीक है, अब प्रेस रिलीज और प्रेस स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है. अगर आपकी पूरी कमेटी मिलकर बना रही है एक डॉक्यूमेंट तो वो बन गया प्रेस रिलीज जो वो प्रेस को देंगे. बट वहीं अगर सिर्फ कुछ डेलीगेट्स बना रहे हैं, ठीक है, या अगर कमेटी में 50 डेलीगेट्स हैं तो 45 डेलीगेट्स बना रहे हैं, 5 डेलीगेट्स ने मना कर दिया, दे डू नॉट वांट टू, ठीक है, दे डू नॉट अग्री विद दिस, तो जाएगी प्रेस स्टेटमेंट. व्हेन इट गोज फ्रॉम द साइड ऑफ द होल कमिटी it is a press release, but when it is from the side of a few delegates then it is press statement. Do we submit draft resolution in hard copy? नहीं, hard copy में कुछ देने की जरूरत नहीं है. आरव कपूर टाइप डाउन कर दो अगर अभी बहुत करना, एंड में I will take up doubt. Same is with GSM. Type it down please. Okay, चलो. नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिकमेंडेशन पेपर पे. बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, इजीएस्ट. मैं बहुत बनवाती हूँ जब मैं चेयर करती हूँ. रिकमेंडेशन पेपर में सिंपली क्या करना है हमें, हम रेकमेंड या सजेस्ट करते हैं सॉल्यूशंस, दैट्स ऑल. ठीक है, कि क्या हम सॉल्यूशंस सजेस्ट करना चाहेंगे, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन पेपर. आप क्या करते हो, दूसरे डेल्स के साथ ही प्रेस स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज बनाते हो. ठीक है, अगर इंडिविजुअली दोगे तो वो भी प्रेस स्टेटमेंट का ही पार्ट बन जाएगी टेक्निकली तो. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. एनालिसिस पेपर. आपकी कमेटी में कोई इशू डिस्कस हुआ, आपने उसे एनालाइज करा, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द एनालिसिस पेपर. ठीक है, वो एनालिसिस, यहाँ पे आप उस इशू को एनालाइज करके लिख रहे हैं, दैट इज एनालिसिस पेपर. सिंपल. ठीक है, अब आते हैं कमेटी रिपोर्ट पे. ये पता नहीं रिपोर्ट इतना दूर क्यों चला गया कमेटी से. कमेटी रिपोर्ट में क्या होता है कि आपकी कमेटी में जो भी डिस्कस हुआ, भले वो प्रॉब्लम्स हो, सॉल्यूशंस हो, एनालिसिस हो, एक्शंस हो, कुछ भी, ऑल ऑफ दैट आप एक रिपोर्ट बनाते हैं. जैसे अब आपके स्कूल में अगर कोई इवेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट बनती है ना, वैसे आप रिपोर्ट बनाते हैं. ठीक है, दैट इज कमेटी रिपोर्ट. तनु स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर आपको नहीं दिख रही तो आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है.
प्रगति मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, आप मुझे क्या व्हाट डू यू वांट मी टू टाइप, लाइक बताओ मुझे तो आई विल टाइप दैट, वरना ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, रिकमेंडेशन पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, चलो मैं आप सबको ना एक एक का लिखवाती हूँ जल्दी से, या मैं बोल देती हूँ, ठीक है। आप सब नहीं चाहते हो कि मैं बैठ के बोलूँ तो ठीक है, जस्ट राइट इट। नहीं, ऑल ऑफ दीज आर नॉट कंपल्सरी टू सबमिट। अगर आपके ईबीज बोलते हैं कि बनाओ तो ही बनाना है। मोस्टली कमिटीज में ईबीज नहीं बनवाते हैं, वो डिबेट पे फोकस करते हैं ज्यादा, बट कुछ कुछ कमिटीज में बनता भी है, तो इसलिए आना तो चाहिए ना। ठीक है, पोजीशन पेपर क्या है, प्री कमिटी स्टैंड्स आपकी कंट्री का, मैं इसको कैपिटल से हटा देती हूँ। प्री कमिटी स्टैंड्स ऑफ योर कंट्री, ओके। प्रेस रिलीज होता है क्या, जो हम प्रेस को देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट कमिटी and its discussion that is given to international press, ठीक है। अब आते हैं रिकमेंडेशन पेपर में, डॉक्यूमेंट वेयर वी रेकमेंड सॉल्यूशंस, ठीक है, बस सॉल्यूशंस देते हैं। अब वो भी किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, एनीथिंग, ठीक है। एनालिसिस पेपर में क्या करते हैं हम, वी एनालाइज और इंटरप्रेट दी एजेंडा। हमने क्या एजेंडा डिस्कस करा, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ करी कमिटी ने, क्या इंटरप्रिटेशन एनालिसिस थी, दैट वी पुट इन आवर एनालिसिस पेपर। कमिटी रिपोर्ट होती है एक रिपोर्ट दैट सम्स अप द कमिटी, कमिटी में जो जो हुआ वो सम अप कर देती है, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। जॉइंट स्टेटमेंट हो गई कि दो कंट्री या मोर देन टू, मतलब कोई भी नंबर ऑफ कंट्री दैट इज अबव 1 ने बोला कि हम साथ आके एक स्टेटमेंट देते, जैसे इंडिया एंड रशिया ने एक स्टेटमेंट दी कि वी कंडेम द एक्शंस ऑफ पाकिस्तान इन लेट्स से पहलगाम, ठीक है। तो ये बन गया पार्ट ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट। उन्होंने फर्दर बोला कि वी वुड नॉट डू एनी ट्रेड विद पाकिस्तान, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट, कि दो कंट्रीज ने साथ आके एक स्टेटमेंट रिलीज करी है, ठीक है। अग्रीमेंट्स होते हैं कि कंट्रीज ने कुछ चीजों पर एक कॉमन कंसेंसस बिठाया कि अब से हम ट्रेड में एक दूसरे पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारी कंट्री में टैक्स फ्री ट्रेड होगा, हम लोग वीजा फ्री कर देंगे एक दूसरे की कंट्री के लिए। तीसरा, हम लोग ईज टू डू बिजनेस बढ़ाएंगे फॉर सिटीजन ऑफ ईच अदर्स कंट्री। तो ये दो कंट्री ने ये पॉइंट्स पे अग्री करा है, तो उन्हें ये पॉइंट्स एक अग्रीमेंट में डाल दिए और दोनों ने साइन करे, जैसे हमारे प्रॉपर्टी के अग्रीमेंट्स भी तो होते हैं ना वैसे। तो ये बन गया आपका बायलेटरल अग्रीमेंट। वहीं अगर दो से ज्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है, इट इज मोर देन 2 कंट्रीज, यहां मैं लिख देती हूँ 2 कंट्रीज, ठीक है, यहाँ आ गया मोर देन 2 प्लस, ओके। अब आते हैं हम लोग प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट पे। इसकी ना बहुत अलग अलग चीजें आपको अलग अलग बताएंगे। कोई बोलेगा कि अगर कोई बहुत क्राइसिस सिचुएशन है, उसमें प्रेसिडेंट की साइड से कोई स्टेटमेंट आ रही है, तो वो हो गई प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट। और इसका मेन जो जो मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए देखा, वो ये है कि प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। सिक्योरिटी काउंसिल, कल मैंने आपको परसों बताया था, यूएनएससी, अब उसके जो प्रेसिडेंट है ना, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, एक एक महीने के लिए अलग अलग कंट्री बनती है। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी अगर किसी की कंट्री की साइड से कोई स्टेटमेंट आता है, तो उसे भी प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यू कैन गो विद व्हाटएवर योर कमिटी ईबी टेल्स यू, ठीक है। ओके, अग्रीड कंक्लूजन सिर्फ सीएसडब्ल्यू में मेनली बनाया जाता है। सीएसडब्ल्यू का मेन डॉक्यूमेंट है, जिसमें अगेन
जो जो चीजों पे पूरी कमेटी ने अग्री करा है वो डाला जाता है अग्रीड कंक्लूजन में। लिख देती हूँ मैं, CSW में मेनली बनता है। फिर होती है रिव्यू रिपोर्ट्स। ठीक है, रिव्यू रिपोर्ट क्या है कि आपने एक लॉ है, मैंने आपको कहा कि यू नो मेनली भी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि भी आपको डीआर के लिए ही बोले। बायलेटरल अग्रीमेंट्स होते हैं, अगर दो कंट्री साथ में है, उन्होंने कुछ कॉमन पॉइंट्स पे अग्री करा, ठीक है, उन्होंने कुछ कॉमन पॉइंट्स पे अग्री करा और उसे लिखा और दोनों ने साइन कर दिया, तो वो हो गया बायलेटरल अग्रीमेंट। ठीक है, या नहीं 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 ना, अगर आपने अपनी टीचर को पॉइंट सजेस्ट करे हैं कि कंपटीशन में ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, दैट इज या रिकमेंडेशन पेपर। बट टीचर अगर उसके थ्रू जाती है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दैट बिकम एनालिसिस पेपर नहीं। एनालिसिस पेपर होता है कि आपने जो पॉइंट्स दिए हैं वो अगर एनालाइज होते हैं। जैसे आपने एक पॉइंट दिया कि रंगोली मेकिंग कंपटीशन में आप राइस अलाउ करो, राइस से आपको पता है ना रंगोली बनती है, छोटे वाले राइस से कलर्ड होते हैं वो जो, तो आपकी टीचर ने इसको एनालाइज करा कि नो वी कैन नॉट अलाउ यूजेज ऑफ राइस कंसिडरिंग इट विल बी वेस्टेज ऑफ फूड and there are so many people who sleep hungry, so it is better that we go with traditional colors only। ठीक है, तो वो बन गया एनालिसिस। आपने जो सजेशन दिया वो हुआ रिकमेंडेशन पेपर का पार्ट, बट वही जब एनालाइज हुआ उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया तो वो हो गया एनालिसिस पेपर का पार्ट। ठीक है, बट गुड ट्राई, वेरी गुड। ठीक है, कैन बी इंडिविजुअली मेक अग्रीड कंक्लूजन, नहीं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, कुछ डॉक्यूमेंट आप चाहें तो आप अकेले भी बना सकते हैं, बट कुछ नहीं बना सकते। जैसे पोजीशन पेपर यू मेक अलोन, press release you can't, press statement maybe, maybe not, some EBs allow, some EBs don't। Recommendation paper, yes, you can make it alone as an individual country। Analysis paper is usually, it can be done both ways। Committee report, no, the committee together makes it। Joint statement तो नाम से ही कह रही है कि multiple countries join कर रही हैं hands and they are giving a statement, तो वो तो आप अकेले कर ही नहीं सकते हो। बायलेटरल अग्रीमेंट भी आप अकेले नहीं कर सकते हो, दो कंट्रीज होनी चाहिए। मल्टीलैटरल अग्रीमेंट भी आप अकेले नहीं बना सकते हो, मोर देन 2 कंट्रीज होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी प्रेसिडेंट की साइड से भले वो रियल हो या यूएनएससी में जो है, तो आप ऑब्वियसली ऐसा लोन यू कैन डू इट। अग्रीड कंक्लूजन पूरी कमेटी मिलके बनाती है, तो आप अकेले नहीं बना सकते हो। अब रिव्यू रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि किसी भी कंट्री का या यूएन की, ये कोई भी पॉलिसी या लॉ है जो अगर हम उसे रिव्यू करते हैं और उस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं, ये लॉ में ये प्रॉब्लम है, ये सही है, दैट इज पार्ट ऑफ योर व्हाट डू वी से रिव्यू रिपोर्ट्स। ठीक है, या पॉलिसी रिव्यू। जीएसएम आपका जो राइट ऑफ रिप्लाई का क्वेश्चन है मैं वो एंड में लूंगी, मैंने बोला था कि जनरल क्वेश्चंस आई विल टेक एट द एंड। ओके, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट होता है, देखो दो तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये है कि क्राइसिस है, नहीं चल पा रहा है, क्राइसिस है, उसमें आ रहा है कुछ भी आपकी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट जो आपके प्रेसिडेंट है उनकी साइड से स्टेटमेंट, दैट इज वन वे हाउ पीपल थिंक प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा तरीका ये है कि यू नो आपकी कंट्री, जैसे अगर आपकी कंट्री यूएनएससी में एक नॉन परमानेंट मेंबर है, जैसे इंडिया यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर थी, तो जो इंडिया के एम्बेसडर है ना, एवरी मंथ जो वहाँ के चेयर, जैसे एमएन में चेयर होते हैं, यूएनएससी में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एवरी मंथ चेंज होता रहता है। ठीक है, मंथ या बाय मंथ ऐसा कुछ होता है, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, सॉरी। ठीक है, तो हर कंट्री रोटेशनल बेसिस पे प्रेसिडेंट बनती है, जो भी उस टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर होती है। तो जब आपकी कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप में है, ठीक है, तो आपके एम्बेसडर जो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से स्टेटमेंट देते हैं उसे बोला जाता है प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दो हैं। फॉर्मेट इनका कोई रिजिड नहीं है, मैं आपको एंड में एक जनरल फॉर्मेट दे दूंगी। ठीक है, अग्रीड कंक्लूजन होता है सीएसडब्ल्यू में जब सारी कमिटीज अग्री करके they write down all the things that they have agreed upon, that they have discussed the solution, तो वो पार्ट बन जाता है अग्रीड कंक्लूजन का। ठीक है, चलिए आगे रिव्यू रिपोर्ट्स मैंने बता दिया, कोई पॉलिसी या कोई लॉज या किसी कंट्री की कंडीशन, जैसे
ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो बच्चे CSW में है वो पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है, इसका रिव्यू होता है, ठीक है, रिव्यू रिपोर्ट बनती है एवरी आई थिंक 5 years या 6, हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है 5 ही होता है आई थिंक, बट आई माइट मिस ऑन नंबर्स। प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? रिकमेंडेशन पेपर में आपने कोई भी सॉल्यूशन सजेस्ट किया, बट प्लान ऑफ एक्शन में आप वो कैसे स्टार्ट होगा टू कैसे एंड होगा, इलेबोरेटली एक पूरा प्लान बनाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने आपको बोला गाइस प्लीज स्टडी हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, तो ये वाला पार्ट मेरा जाएगा रिकमेंडेशन पेपर। बट मैंने बोला कि आई थिंक यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद करेक्टिंग योर शेड्यूल, वंस यू करेक्ट योर शेड्यूल and have a proper sleep cycle, you should start studying from NCERTs. You should read NCERTs and make notes and revise it on the gap of every 3 days. Simultaneously, try to complete all the NCERTs in at least 3 months. Once you are done with all the NCERTs, you can go with reference books, but at the same time, you should do 10-year papers of board exams. ठीक है? Make sure your revision is regular. Make sure you are taking proper sleep. Make sure you join XYZ coaching because they have best teachers. You can buy mock tests from this place and you can follow this book. ठीक है? तो मैंने क्या किया, रिकमेंडेशन में तो मैंने आपको सजेस्ट करा कि पढ़ लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, बट यही प्लान ऑफ एक्शन में मैंने एक डिटेल्ड प्लान दिया कि आपको वो कैसे करना चाहिए। ठीक है? थीमेटिक पेपर क्या होता है कि अगर मेरा मेन टॉपिक था कमिटी का पॉल्यूशन, तो मैंने उसको थीम्स में बांट दिया, causes of pollution, solutions of pollution, ठीक है, countries which are highly polluted, UN's contribution in reducing pollution, ठीक है। ऐसे मैंने themes में, यानी कि जैसे मॉड्स है ना कि मेन एजेंडा को सब पार्ट में, सिमिलरली आपने मेन टॉपिक को सब थीम्स में डिवाइड कर दिया और आपने फिर उन पे पॉइंटर्स लिखे, ठीक है, दैट इज अ थीमेटिक पेपर। अब आते हैं कम्युनिक पे। कम्युनिक का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट है। कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि या तो सब इस पे अग्री करेंगे या फिर ये डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कमेटी में 100 बच्चे हैं और 99 बच्चे इस पे अग्री करते हैं बट एक बच्चा नहीं करता है, तो भी ये कम्युनिक जो डॉक्यूमेंट है वो पास नहीं होगा या वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इस पे सारी कमेटी अग्री नहीं करती है। इसमें भी अगेन लाइक ऑल द डॉक्यूमेंट सॉल्यूशंस ही लिखे जाते हैं। फिर आता है वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर होता है प्री ड्राफ्ट ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, मतलब अगर मुझे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में अपने 10 बेस्ट सॉल्यूशन के पॉइंट्स डालने हैं तो मैं वर्किंग पेपर में 40 पॉइंट्स डाल सकती हूँ और उसमें से फिर जो बेस्ट पॉइंट्स है वो उठा के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में डाल दूं। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्री ड्राफ्ट है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का, जिसमें भी राइट डाउन ऑल द सॉल्यूशंस एंड देन द सिलेक्टिव वंस गो टू द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। अब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मैंने इसलिए हाईलाइट करी है क्योंकि ये सबसे फॉर्मल फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट है इन द यूनाइटेड नेशंस एंड नॉट एवरी कमिटी कैन मेक इट। हमारे यहाँ पर जो कमिटीज हो रही हैं उसमें से ओनली HRC एंड UNGA कैन मेक इट। जो भी कमिटीज जैसे MUN में हो रही है इसमें सिर्फ HRC और UNGA के डेलीगेट्स हैव द पावर टू मेक इट। रेस्ट अदर कमिटीज कैन नॉट मेक अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। दे मे और मे नॉट अडॉप्ट इट बट दे कांट मेक इट। ठीक है, मेनली इनमें बनती है, आप इन्वायरमेंट असेंबली की भी देखेंगे बट दैट इज मोर और लेस अडॉप्शन। EA में हम फिर भी बात कर सकते हैं, EP में तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हमारे MUN में UNHRC और UNGA में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बन सकती है। बट मैं आप सभी को आपकी नॉलेज के लिए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या होती है वो बता दूं। ठीक है, तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सबसे फॉर्मल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका 50-60 MUN एक्सपीरियंस है बट उन्हें आज तक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नहीं बनानी आई। ठीक है, क्योंकि मोस्टली EBs बनवाते नहीं है इसलिए बच्चे सीख नहीं पाते हैं और ये ट्रेंड बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे EBs भी हैं जिनको खुद भी शायद नहीं आती हो, बट हमने ऐसे EBs नहीं बिठाया, वी हैव ऑल द सीनियर EBs, बट ऐसा है, ये प्रॉब्लम है आज के टाइम में। ठीक है, तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कैसे बनाते हैं ये मैं बहुत क्विकली सिखा दूंगी आप लोगों को इन 5 मिनट्स ओनली, डिटेल में नहीं क्योंकि उतना अभी हमें जरूरत भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। ठीक है, पहले तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कौन बनाता है? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाने के लिए लोगों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, स्पॉन्सर और सिग्नेटरी।
स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? जो मेनली ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाते हैं, जो पूरा रेजोल्यूशन लिखते हैं। और सिग्नेटरीज वो लोग होते हैं who want कि ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इस कमेटी में डिस्कस की जाए एटलीस्ट, क्योंकि जितनी भी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होती है बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सीधा बनते हैं, रीड किए जाते हैं और पास हो जाते हैं, बट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में क्या लिखा जाता है, उसका कंटेंट क्या है? तो देखो, दो तरीके के क्लॉजेस हैं, प्रीएम्बुलेटरी और ऑपरेटिव। प्रीएम्बुलेटरी में जो वर्ड है ना प्री, आप उस पे फोकस करो। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? पास्ट। ठीक है, तो प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस में जो भी पास्ट एक्शंस हुए हैं वो आते हैं, और ऑपरेटिव क्लॉजेस में जो भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो आते हैं। अब जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है ना, वो फॉर्मेट को लेके भी काफी स्ट्रिक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसकी काफी चीजें हैं फॉर्मेट की जो आपको ध्यान मतलब रखनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन पेपर कमेटी का प्री ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कमेटी में काफी लोग मिलके बनाते हैं। ये बहुत, दिस इज द मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट। रियल यूएन में एग्जैक्टली पोजीशन पेपर या बहुत सारे डॉक्यूमेंट इस नाम से तो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, बट एमयूएन में कॉमनली फॉलोड है, तो मैंने आपको बताया। बट या रेजोल्यूशंस डू एग्जिस्ट, ठीक है, यूएन में भी, एंड दे व्हेन दे गेट पास दे बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। चलो, प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस में पास्ट एक्शन आते हैं, ऑपरेटिव में आते हैं सॉल्यूशन। प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस में हम नंबरिंग नहीं करते जब हम उन्हें लिखते हैं। इटैलिक्स में प्रीएम्बुलेटरी और ऑपरेटिव क्लॉजेस जो है ना, ये इनकी एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है। तो बेसिकली आपका कोई भी सॉल्यूशन है, रिकमेंडेशन है, आप फर्स्ट वर्ड जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी गई है फॉर प्रीएम्बुलेटरी एंड ऑपरेटिव क्लॉजेस उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, करणवीर, एवरी डे वी एंड अराउंड 10, तो आज भी तभी करेंगे हम। ठीक है, मीटिंग आई हैव टू ईट, आज जल्दी खत्म कर दूंगी मैं, आप साथ साथ खा लो प्लीज। ठीक है, मैं आई विल ट्राई कि मैं अभी इसको अभी 10 मिनट्स में आई विल एंड, उसके बाद जिसके डाउट्स हो दे कैन स्टे एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन लीव फॉर 10 मिनट्स। जस्ट बियर विद मी एंड देन वी कैन जस्ट गेट डन विद इट। ओके, 10 भी ज्यादा बोल दिए, कम में ही हो जाएगा। ओके, प्रीएम ऑपरेटिव क्लॉजेस में आते हैं हमारे सॉल्यूशन। प्रियांशु, यू कैन टाइप व्हाटएवर इट इज in the question option. Okay, can we bring external book of procedure? Book of procedure, is there a book for procedure? बट आप वैसे कोई भी बुक्स लेके आ सकते हो, nobody can stop you, बट यहाँ पे यूएन है, यूएस से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। ठीक है, हाँ, मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को भेज दूंगी, अभी प्लीज इस पे फोकस करें सब लोग। ऑपरेटिव क्लॉजेस में सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं, तो देयर आर लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो अगर मुझे अपना सेंटेंस शुरू करना है ना, मुझे बोलना है कि आई दैट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो मैं प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज की जगह ऑपरेटिव क्लॉज का एक वर्ड है अर्जिस, अर्जिस यूज करूंगी, लिखूंगी अर्जिस टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अब ऑपरेटिव क्लॉजेस में नंबरिंग होती है। ठीक है, पहले नंबर, अगर सब पॉइंट है तो अल्फाबेट, और उसका भी सब पॉइंट है तो रोमन नंबर, और ये एंड होता है हमेशा विद सेमी कॉलन। फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते हो। जहां भी रेजोल्यूशन में फुल स्टॉप आ गया वहां से रेजोल्यूशन खत्म हो गई, उसके आगे की रीड भी नहीं करी जाएगी। ठीक है, और वहीं प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस कॉमा से खत्म होता है। अब आपको मैं समझाऊंगी तो समझ में आएगा, इससे बेटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो, ये है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ऊपर हमने डाला ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये नंबरिंग, ये अलग अलग फॉर्मेट्स अलग अलग जगह चलता है। रियल यूएन में ऐसा ही होता है, नियरली सेम। यूएन का एम्बलम है ये, वो लगा यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हर रेजोल्यूशन का एक नंबर होता है, तो ये वो नंबर है। बट आपको एमयूएन में इतना सब कुछ फॉर्मल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन 1 लिखो, स्पॉन्सर, सिग्नेटरी, एजेंडा लिखो, बहुत है। ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ, डेट आपको पता है। ओरिजिनल होता है यूएन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएन की। ठीक है, पर उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी चीज ओरिजिनली बनती है, बाकी बची हुई 4 में वो फिर ट्रांसलेट होती है। ठीक है, तो ओरिजिनल लैंग्वेजेस एक तो इंग्लिश है और एक फ्रेंच है, क्योंकि दीज आर दी 2 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होती है, मतलब सिर्फ लिमिटेड लोगों को जाती है, राइट। बट वहीं अगर कोई चीज is, I mean, not that confidential, everybody should read it,
तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जनरल होती है। बट ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत हाईली एक्सपीरियंस डेलीगेट्स करते हैं, बट इससे कोई मार्क्स वार्क्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देन स्पॉन्सर्स वो कंट्रीज जो मेनली बना रही हैं, सिग्नेटरीज वो कंट्रीज जो अग्री करते हैं कि इस रेजोल्यूशन को डिस्कस होना चाहिए, आपकी कमेटी का एजेंडा, फिर आपकी कमेटी का नाम आएगा इटैलिक्स में और इसके बाद लगेगा कॉमा, फिर आपके ये देखो जो पॉइंट्स है, देखो इसमें नंबरिंग नहीं है, ये फर्स्ट वर्ड है प्रीएम्बुलेटरी क्लॉज के वर्ड्स। आप अगर इंस्टाग्राम सॉरी गूगल पे लिखेंगे तो आपको इसकी लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएगी, रिकॉलिंग, रिकग्नाइजिंग, एम्फसाइजिंग। इसमें देखो इन्होंने लिखे हुए पास्ट एक्शंस, ठीक है, तो दैट यू पुट इन योर प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस। अब आते हैं ये ऑपरेटिव क्लॉजेस, यहाँ से हो गई है नंबरिंग शुरू, ठीक है, तो और फर्स्ट वर्ड बोल्ड हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक हाउ इट इज इन द रेजोल्यूशंस, ठीक है। ये भी वैसे ही एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है ऑपरेटिव क्लॉजेस की भी, आप उसमें से पहला वर्ड उठा के फिर आगे का अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपका मेन पॉइंट है 1, उसका सब पार्ट है पॉइंट का तो ABC, और उसका भी सब पार्ट है तो फिर आ जाते हैं हम रोमन नंबर्स पे, ठीक है। ये हमारे प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस, ऑपरेटिव क्लॉजेस हैं। और जो लास्ट क्लॉज होता है वो सेम रहता है, यही डिसाइड्स टू रिमेन एक्टिवली सीज्ड ऑफ द मैटर, ठीक है। एंड इस पॉइंट के बाद लग जाता है फुल स्टॉप। आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हो, ये एग्जैक्टली सेम डलता है एज द लास्ट पॉइंट ऑफ द रेजोल्यूशन। आपकी पूरी रेजोल्यूशन कुछ भी हो, लास्ट पॉइंट आप ये डाल के यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसके अलावा बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ये जो नंबरिंग वाले हैं ये काउंट नहीं होते, बट ये टेक्स्ट में। और देखो, और प्रीएम्बुलेटरी ऑपरेटिव क्लॉजेस में सेमीकोलन से एंड हो रहा है, और वहीं ऊपर जाए अगर हम प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस में तो ये देखो एक कॉमा से एंड हो रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब आपने लेट्स से ये रेजोल्यूशन पूरी बना ली। अब ये रेजोल्यूशन डिस्कस कैसे होती है, ठीक है। तो क्या होता है, या तो हम क्लॉज बाय क्लॉज ये पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक क्लॉज पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं कैसे, या तो क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग है, या इस पे हमने एक मॉडरेटेड कॉकस करा दिया और सब उसमें स्पीच दे रहे हैं। बट मोस्टली भी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन में क्वेश्चनिंग आंसरिंग करवा देते हैं कि एक क्लॉज पढ़ा फिर क्वेश्चन आंसर करे, फिर दूसरा पढ़ा क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन पूछता कौन है, एवरीबडी एंड ऑल्सो द सिग्नेटरीज, ठीक है, एवरीबडी इन द कमिटी एंड ऑल्सो द सिग्नेटरीज। और आंसर कौन करता है, स्पॉन्सर्स, बिकॉज दे आर द मेन मेकर्स ऑफ दिस रेजोल्यूशन, ठीक है। तो डिस्कशन होता है, अमेंडमेंट्स होती है, अमेंडमेंट मतलब आप इस रेजोल्यूशन में चेंजेस सजेस्ट कर सकते हो। क्या क्या तरीके के चेंज कर सकते हैं हम किसी भी चीज में, या तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं, या हम कुछ डिलीट कर सकते हैं, या हम कुछ एग्जिस्टिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ईबी ने बोला कि ऑल ऑफ यू सेंड मी अमेंडमेंट्स, तो आपने अमेंडमेंट्स भेज दी जिसमें हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई का बोला आपने। अब इम्प्लीमेंट कैसे होगी ये, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तीनों अमेंडमेंट जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। अब फ्रेंडली है अनफ्रेंडली है ये स्पॉन्सर बताते हैं। अगर स्पॉन्सर कहते हैं कि आपने जो अमेंडमेंट बोली, जैसे आपने एक अमेंडमेंट लिख के दी कि डिलीट क्लॉज 8, ठीक है, स्पॉन्सर ने कहा चलो ठीक है, इनका पॉइंट वैलिड है, उन्होंने कहा ओके फ्रेंडली अमेंडमेंट, तो ये क्लॉज 8 डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट वहीं अगर स्पॉन्सर ने कहा अनफ्रेंडली अमेंडमेंट है हमारे लिए ये, तो उस पर वोट किया जाएगा और हमें चाहिए होगी हमारी सब्सटैंटिव वोटिंग, यानी कि 2/3 वोट्स। अगर आपके अमेंडमेंट को 2/3 वोट्स मिल जाते हैं तो वो पास हो जाती है और वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन से क्लॉज 8 डिलीट हो जाएगा। बट अगर उतने वोट्स नहीं मिलते हैं तो ये 8 क्लॉज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये सब होने के बाद एंड में वोटिंग होती है, रोल कॉल वोटिंग, की हर कंट्री का नाम लिया जाता है और वो बोलते हैं कि फेवर, अगेंस्ट या एब्सटेन। तो यहाँ पर जिन कंट्रीज ने प्रेजेंट बोला होता है वो फेवर, अगेंस्ट के अलावा एब्सटेन, यानी कि दे कैन नॉट वोट एट ऑल। बट जिन कंट्रीज ने प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला होता है उन्हें फिर इस रेजोल्यूशन के या तो फेवर में वोट करना पड़ता है या अगेंस्ट। वाओ, 10 मिनट में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कवर, ठीक है। आई होप सबको समझ आई होगी, ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। गाइज 3 दिन हो गए हैं हमारे सेशन चलते चलते, क्या आप लोगों ने कुछ सीखा? मुझे थम्स अप के अलावा कोई इमोजी भेजो सीखा है तो। सेंड मी एनी इमोजी अदर देन थम्स अप। डिड यू गाइज लाइक दीस सेशंस? ओके, थैंक यू। आई होप कि मेरे 3 दिन यहाँ पे रहना थोड़ा फ्रूटफुल रहा एंड आई वाज एबल टू टीच यू गाइज समथिंग,
ठीक है, अगर आप कभी मेरी कमेटी भी आएंगे, जब मैं चेयर कर रही हूँ ना, आप डेलीगेट है, तो मैं ऑफन अपनी कमेटी में भी बच्चों को ऐसे सिखाती रहती हूँ, क्योंकि आई लाइक डूइंग दैट। ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड आवर 3-day सेशंस। ठीक है, कुडोस टू दोस्त जो तीनों दिन आए। कौन है वो लोग जो तीनों दिन आए हैं? मैं एक पोल डालती हूँ, मुझे पोल में बताओ कौन कितने दिन आया है। ठीक है, आई वुड पुट अ पोल अभी, आई शुड नो ना कि कौन कितने दिन आया है। देखते हैं फिर कौन है सबसे अच्छे बच्चे जिन्होंने तीनों दिन अटेंड करा है। How many days you attended the session? 1, 2, and the third option is 3. ठीक है, 3 on 3 अटेंड करा है, 2 on 3 अटेंड करा है, या 1 on 3 ही अटेंड करा है। ठीक है, आप ये लोग पोल में डाल दो, और अब जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं दे कैन पुट। जिन लोगों का सब कुछ हो गया है वो पोल में वोट कर दें, एंड उसके बाद दे कैन लीव। मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म भेजूंगी, उसमें आप प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, सो दैट वी नो वेयर वी कैन इम्प्रूव एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्लीज सब मेक श्योर करें कि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में हैं। बहुत बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा, आपके पास ईमेल पे लिंक आ गया है, नहीं आया है तो हमारी ईमेल आईडी है thenovicesummit@gmail.com। देखो अब भेज दिया पोल, उस पर यू कैन सेंड अस एन ईमेल कि हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं आया, माय नेम इज दिस, माय ईमेल इज दिस, माय फोन नंबर इज दिस, आई वाज इन दिस कमिटी। ठीक है, मेरे पास नहीं आया। अब मैं डाउट्स लूंगी। ठीक है, तो जिसके जो भी डाउट्स हैं दे कैन पुट इट इन द क्वेश्चन सेक्शन। या गौरी और फ्रॉम द टीम ना, तो चैट बॉक्स में यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन में ही डालो प्लीज। ओके, हमारी टीम भी ट्रेनिंग दे रही है आप लोगों के साथ। ओके, 49 पीपल आर अभी देर आर 84 पीपल, सबने वोट नहीं करा है। सब जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, ऑल दोज हैव अटेंडेड 3 days। अगर आप जो मैंने बताया अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे, देन ऑब्वियसली you will do amazing. If not in this session, then in maybe future ones, but yes. ठीक है, चलो, दिस एम्यून सॉरी, या क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आप सीखेंगे। ओके, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कमेटी में जो बैठा है वो आपको सब, हर इंसान एक नई चीज सिखाएगा, तो सबकी बातें आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलो अब मैं आंसर करना शुरू कर देती हूँ, पोल हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। जिसके डाउट्स है दे कैन स्टे, रेस्ट एवरीबडी कैन लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, दोज हु अटेंडेड। ठीक है, टीम यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर नाउ। चलो, मुझे भूलना मत, ठीक है, रिमेम्बर दैट मैम ने कुछ सेशन में सिखाया हमने। ओके, हैज द स्क्रीन शेयर बीन स्टॉप? जिस जो भी कर रहा है यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर। ओके, या चलो, कॉन्फ्रेंस पे आके देन से हाय, जब मैं आपको बोलना कि आए थे हम आपके सेशन में। ओके, सो आई शुड नो। चलो, अब आई विल स्टार्ट।